Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 12 Computer Science with Python. In this video, we are going to discuss objective type questions of the chapter Python Revision Tool. The objective type questions of Python Revision Tool we will cover in two videos. Okay, in this video we will cover the basic Python, and in our next video I will make it on the string, list, tuple and dictionary. Now let's start with the first question. Which of the following is an invalid identifier? आपका एग्जाम में जनरली इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आपको आइडेंटिफायर के नेम्स दे देंगे and you have to identify which one is the valid and which one is an invalid identifier. So there are certain rules of this for valid and invalid identifier. First is that my identifier can contain digit but cannot start with a digit. Let me write the rules here. Yes, first rule is identifier can contain digits but cannot start with a digit. कि उसमें digits तो हो सकती हैं but वो digit से start नहीं होगा. ठीक है. Second is blank space is not allowed. कि अगर मेरे उसमें blank spaces हैं किसी भी कीवर्ड में तो वो आपके अलाउड नहीं है. That means वो आपका क्या होगा? Invalid. और प्लस आपकी कीवर्ड्स भी अलाउड नहीं है. Blank spaces and keywords not allowed. Plus special characters. Special characters except underscore. आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है. ठीक है. Now let's see this. Let me erase this now. Yes. Now first देखो बेटा my underscore day underscore 2. ठीक है. My identifier can contain underscore. So this is my valid identifier. And you have to identify the invalid. जो आपके invalid है that you have to identify. अब second देखो second underscore day. This is my invalid identifier. Reason being that it is starting with a digit. ठीक है. My identifier can contain digit but cannot start with a digit. Second is valid. ठीक है. And third is also valid. इसमें आपका ये वाला भी valid है. अंडरस्कोर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर से स्टार्ट भी हो सकता है, इन बिटवीन भी आ सकता है. So in this question the invalid identifier is part number B, that is second underscore day. Next beta, which of the following is not a keyword? And what are keywords? Keywords are some special words जिनका मीनिंग मेरे पाइथन इंटरप्रेटर को ऑलरेडी पता है. सपोज if is my keyword, while is my keyword. तो my python interpreter knows कि अगर if आ रहा है तो I have to check the condition, और अगर while आ रहा है तो that means I have to repeat the statements again and again until the condition become false. तो ये चीज उसको पहले से ही पता है. Now you have to identify which of the following is not a keyword. Else is my keyword, non-local is my keyword, pass is also my keyword, eval is not a keyword. It is a function. Next beta, which of the following is not a core data type? Core means जो आपकी inbuilt data type नहीं है. List is your data type, dictionary is your data type, tuple is your data type, but class is not your data type. Now next question, what will be the value of the expression this? अब आपको expression given है, ठीक है. इसमें ऑपरेटर कौन सा बेटा? प्लस, जो सिंपल एडिशन के लिए यूज होगा, और कौन सा? मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स द रिमाइंडर. अगर मैं 2 नंबर्स को डिवाइड कर रही हूँ तो उस टाइम पर जो रिमाइंडर होगा दैट इट विल रिटर्न. ठीक है. अब देखो, अब हम इसके प्रेसिडेंस चेक करेंगे. प्लस और मॉड्यूलस में प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा होती है बेटा? मॉड्यूलस की. तो पहले मैं क्या सॉल्व करूंगी?
13 मॉड्यूलस 15। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर बेटा मेरा क्या आएगा 13। ठीक है, अब जब 13 मेरा रिमाइंडर आएगा तो उसको मैं किस में प्लस करूंगी, 14 में। तो अब मुझे नेक्स्ट टाइम क्या करना है, 14 प्लस 13, तो योर फाइनल आंसर विल बी 27। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, 27। आपने इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस। लेट मी शो यू दिस इन पाइथन आइडियल। पाइथन शेल ओपन करते हैं। सी 14 प्लस 13 मॉड्यूलस 15। ठीक है, पहले क्या सॉल्व होगा, 13 मॉड्यूलस 15, एज बिकॉज मॉड्यूलस प्रेसिडेंस इज ग्रेटर और हायर देन द प्लस प्रेसिडेंस। Now move on to the next question. Evaluate the expression if a equals to 16 and b equals to 15. आपको दो वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है बेटा, a की वैल्यू 16 और b की वैल्यू 15। आपको क्या फाइंड आउट करना है, a मॉड्यूलस b, दिस इज द सिंबल ऑफ फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, जो आपको किस में रिजल्ट रिटर्न करता है, इंटीजर में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, a मॉड्यूलस b फ्लोर डिवीजन एंड देन a। अब देखो बेटा, मॉड्यूलस और फ्लोर डिवीजन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम। तो ये आपका सोल्व होगा लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। अगर प्रेसिडेंस सेम होगी तो वी विल फॉलो द एसोसिएटिविटी रूल, दैट इज लेफ्ट टू राइट। आपका सिर्फ एक एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है जो मेरा राइट टू लेफ्ट चलता है, बाकी सारे जो ऑपरेटर्स हैं उनकी एसोसिएटिविटी क्या है बेटा, लेफ्ट टू राइट। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, a मॉड्यूलस b, ये मेरी a की वैल्यू है 16 और मॉड्यूलस b दैट मींस 15। तो सबसे पहले वो क्या सॉल्व करेगा, 16 मॉड्यूलस 15। इसका रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 1, क्योंकि 15 1 सा 15 और 16 में से 15 गए 1। अब वो सॉल्व करेगा बेटा 1 और फ्लोर डिवीजन a की वैल्यू क्या है 16। अब ये नहीं जाते तो, और ये मेरा क्या है फ्लोर डिवीजन, तो इंटीजर में रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या होएगा बेटा, 0 इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं इसको लिख दूं a फ्लोर डिवीजन b मॉड्यूलस a। ठीक है, अब देखो आंसर क्या आ रहा है 1। क्यों, अब पहले क्या सोल्व हुआ, a फ्लोर डिवीजन b, एसोसिएट प्रेसिडेंस सेम है तो एसोसिएटिविटी का रूल फॉलो होगा। अगर मैं a को डिवाइड करूं, फ्लोर डिवीजन 16 डिवाइड बाय 15, तो आंसर क्या आ रहा है बेटा 1, और 1 का मुझे मॉड्यूलस करना है a के साथ, दैट मींस 15। तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अगर प्रेसिडेंस सेम हो तो एसोसिएटिविटी रूल यूज होगा, दैट इज लेफ्ट टू राइट एक्सेप्ट एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर आपका लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट सोल्व होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 0। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब आपको ये x गिवन है, इंट फंक्शन क्या करेगा, जो भी मेरा एक्सप्रेशन अंदर वैल्यू होगी, इफ इट इज कन्वर्टेबल इनटू इंटीजर, तो ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा। और ये आपकी वैल्यूज को राउंड ऑफ नहीं करता है। राउंड ऑफ मींस अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, लेट सपोज इंट 6.9, तो आंसर क्या आएगा बेटा 6। इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, उसको राउंड ऑफ करके रिटर्न नहीं करेगा। अब हमारा एक्सप्रेशन देखो बेटा, 13.25 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। अब प्लस और डिवाइड किसकी प्रेसिडेंस आता है, डिवाइड की। तो पहले मेरा क्या सोल्व होगा, 4 डिवाइड बाय 2, और दिस इज माय डिवीजन ऑपरेटर, तो ये किस में रिजल्ट रिटर्न करेगा, पॉइंट्स में, डेसिमल में। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा 2.0। फिर ये 2.0 मेरा 13.25 में एड ऑन होगा। 13 प्लस 2 बेटा 15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15.25 जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी। अब मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो इंटीजर फंक्शन में मैं जब लिखूंगी 15.25, तो मेरा आंसर क्या आएगा बेटा 15। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज 15। Let me show you practically also.
yes, my expression is int 13.25 plus 4 डिवाइड बाई 2. ठीक है, आंसर इज 15. हमने भी यही मार्क किया. और 15 कैसे आएगा बेटा, पहले ये चीज सोल्व होएगी. अगर मैं 4 डिवाइड बाई 2 करूं, आंसर क्या आएगा बेटा, 2.0. और 13.25 प्लस 2.0 15.25. फिर मेरा इंट फंक्शन इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, बिकॉज माई मेन मोटो इज टू क्लियर योर कंसेप्ट्स ऑल्सो रिगार्डिंग टू दैट क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि जस्ट क्वेश्चन पर और करेक्ट आंसर बताया, नहीं, दिस आई डोंट वांट. आपके कंसेप्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्लियर होने चाहिए. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्सप्रेशन 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 रिजल्ट्स इन, कि आपको एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 8 डिवाइड 4 डिवाइड बाई 2. अब देखो एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है, डिवीजन. तो अब हम क्या फॉलो करेंगे, एसोसिएटिविटी रूल, मींस लेफ्ट टू राइट. तो पहले क्या सोल्व होगा बेटा, 8 डिवाइड बाई 4. अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगी 4 से तो क्या आंसर आएगा, 2.0. उस 2.0 को फिर मैं करूंगी 2 से तो क्या आंसर आएगा, 1.0. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 1.0. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. आपको एक कोड गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस. अब देखो जो कोड गिवन है इसको रीड करते हैं पहले और अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर नेम इन, दिस इज योर लिस्ट. इस लिस्ट में मेरे पास एलिमेंट्स हैं जयेश, रम्या, तरुणा एंड सूरज. ठीक है, ये मेरी एक लिस्ट गिवन है. अब प्रिंट नेम. अब जब मेरा फॉर लूप है वो अगर लिस्ट पर आइटरेट हो रहा है तो 1 by 1 इट विल पिक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. तो जो मेरा प्रिंट फंक्शन है ये क्या कर रहा है, नेम प्रिंट कर रहा है. मींस पहले वैल्यू क्या आएगी, नेम वेरिएबल में जयेश. ठीक है, तो ये उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा. तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, जयेश. उसके बाद कंडीशन चेक होएगी मेरी कि नेम ऑफ जीरो. नेम ऑफ जीरो मीन्स इसके 0th पोजीशन पर क्या है मेरे पास, कैपिटल जे डबल इक्वल्स टू टी. अब वो कंपेयर करेगा, क्या कैपिटल जे जो है मेरा टी के इक्वल है, नहीं, कंडीशन फॉल्स. तो ये आप इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन में आएगा बेटा, ये स्टेटमेंट यहाँ आएगी. ठीक है, अब उसके बाद एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो दैट मीन्स फिनिश. तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, जेएस के बाद फिनिश. इसी तरीके से अब नेक्स्ट टाइम नेम में क्या वैल्यू आएगी, रम्या, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, रम्या. अब कंडीशन चेक होगी, रम्या मींस आई ऑफ नेम ऑफ जीरो. क्या नेम ऑफ जीरो पर कैपिटल टी है, नहीं, अगेन माय कंडीशन इज फॉल्स. तो अगेन इट विल एग्जीक्यूट द एल्स पार्ट, फिनिश प्रिंट हो जाएगा. अब नेक्स्ट टाइम ध्यान से देखना, अब क्या आएगा नेम में, तरुणा, तो प्रिंट तो क्या हो जाएगा, तरुणा. अब कंडीशन चेक होएगी, क्या नेम ऑफ जीरो पर कैपिटल टी है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू. और कंडीशन ट्रू होते ही क्या आ जाएगा, ब्रेक, दैट मीन्स लूप से बाहर. अब जब ये लूप से बाहर आएगा तो लूप से बाहर मेरी कौन सी स्टेटमेंट है बेटा, गॉट इट. तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट जो है प्रिंट हो जाएगी, गॉट इट. ठीक है, लेट मी एग्जीक्यूट दिस प्रैक्टिकली ऑल्सो. Let me just correct the indentation. ठीक है, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर, जयस फिनिश्ड, रम्या फिनिश्ड, तरुणा गॉट इट. दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन, बस इसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया. एंड नाउ सी व्हाट वी हैव चेंज. इसमें हमने इंस्टेड ऑफ इफ एल्स मैंने यहाँ पर फॉर एल्स लूप लगाया. ठीक है, और फॉर एल्स क्या होता है, मेरा जो फॉर लूप का एल्स ब्लॉक है वो तभी एग्जीक्यूट होगा अगर मेरा फॉर लूप से जो कर्सर है
मीन्स जो मेरा पॉइंटर है वो डायरेक्ट टर्मिनेट होकर है, मीन्स वो ब्रेक के थ्रू ना आए। लेट मी शो यू द डिफरेंस। नाउ सी हियर बेटा, लेट मी जस्ट करेक्ट द इंडेंटेशन। नाउ सी बेटा, ये आपको एक लिस्ट गिवन है। अब सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, नेम JS, फिर कंडीशन चेक होएगी, JS डबल इक्वल्स टू मीन्स J डबल इक्वल्स टू T। क्या ये कंडीशन मेरी ट्रू है? नहीं, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो अब मेरा यहाँ पर कोई एल्स पार्ट है? नहीं, तो आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। बस क्या प्रिंट होएगा, मीन्स जो ऊपर यहाँ पर नेम आया था यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नेम आएगा बेटा रम्या, अब वो हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट नेम से यहाँ पर आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, रम्या। ठीक है, अब कंडीशन चेक होगी, R डबल इक्वल्स टू T, कंडीशन फॉल्स। उसके बाद मेरा पास क्या आएगा, नेम में तरुणा, तो ये तरुणा मेरा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, कैपिटल T मीन्स नेम 0, नेम में वैल्यू क्या है बेटा, तरुणा। दिस, इसमें आपका ये कैपिटल T कंडीशन ट्रू है, तो दैट मीन्स इफ पार्ट एग्जीक्यूट होएगा तो आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी। और अगर विद इन द फोर लूप मेरा पॉइंटर जो है वो ब्रेक के थ्रू फोर लूप से एग्जिट कर रहा है, दैट मीन्स वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है, तो आपका ये एल्स पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा और उसके बाद जो आपका रिमेनिंग प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर मेरा सपोज मैं यहाँ पर कंडीशन चेंज कर देती, इस T की जगह पर सपोज मैं क्या लिख देती, M। ठीक है, M इसमें मेरा नहीं है, तो ये मेरी कंडीशन जो है कभी भी ट्रू नहीं होती, तो वो ब्रेक से कभी भी एग्जिट नहीं करता। तो उस केस में मेरा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होती। लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली नाउ। ठीक है, अभी देखो JS रम्या तरुणा गॉट इट, ये फिनिश वाले जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। बट अगर मैं ये कंडीशन चेंज कर दूं, अब वो मेरा ब्रेक के थ्रू बाहर नहीं आ रहा कंट्रोल, अब वो मेरा नॉर्मल एग्जीक्यूशन है, तो अब आपका जो 4 एल्स पार्ट का एल्स ब्लॉक है वो भी एग्जीक्यूट होगा, दिस। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, हमारा यहाँ पर क्या था, कैपिटल T, और इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑपरेटर? इसमें से आपका वैलिड लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर इज एंड। ये मेरा ग्रेटर देन का साइन है, दिस इज माय फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स मेरे पास 3 हैं, एंड और नॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अब आपको इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट उससे पहले हम समझेंगे क्या होता है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है और ये कंटिन्यू आ रहा है, मीन्स ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है, तो वो क्या करेगा, नीचे के पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट आइटरेशन के साथ वो उसको कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। फॉर I इन रेंज 1 to 12, दैट मीन्स जो मेरा I का लूप है वो कहां से कहां तक चलेगा, 1 to 11। रेंज फंक्शन मेरा एक कम तक चलता है, तो I की वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी बेटा, 1। अब कंडीशन क्या है, 1 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स। अब फॉल्स होने पर इफ के साथ बेटा जो ये नीचे दे रखा है, दिस प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन, ये एग्जीक्यूट होगा। ये एल्स पार्ट में नहीं है, बट इफ के जो इंडेंटेशन का ब्लॉक मीन्स इफ का पार्ट नहीं है ये, तो उसके बाहर लिखा होता है, दैट मीन्स वो भी आपकी एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स होंगी। तो क्या प्रिंट हो रहा है बेटा, I में कौन सी वैल्यू है, 1। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम पर अब I की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 2। इंक्रीमेंट होएगा 1 का स्टेप वैल्यू, 2 मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0, दिस टाइम कंडीशन ट्रू। अब कंडीशन ट्रू है तो दैट मीन्स आपका ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, इस पार्ट को स्किप करके नेक्स्ट आइटरेशन से कंटिन्यू करेगी, और नेक्स्ट आइटरेशन मेरी क्या आएगी बेटा,
नेक्स्ट आइटरेशन 3, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा ये, ठीक है। लेट मी शो यू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस। Now see here, I की वैल्यू 1, 1 मॉड्यूलस 2 0 कंडीशन, 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो ये प्रिंट आई। दैट मीन्स मेरे एक तरीके से ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11। अगर यहाँ पर 11 होता तो क्या मेरा 11 प्रिंट होता? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो रेंज फंक्शन है वो एक कम तक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पर क्या था 12, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 3 5 7 9 एंड 11। Now move on to the next question. Write the output of the following expression if a equals to 100 and b equals to 30. आपको a की वैल्यू गिवन है 100 और b की वैल्यू क्या गिवन है बेटा? 30। और आपको किसका आउटपुट फाइंड आउट करना है? प्रिंट a फ्लोर डिवीजन b। फ्लोर डिवीजन क्या करेगा बेटा? 100 को डिवाइड करेगा 30 से। क्वेश्चन क्या आएगा? 33 सा 93, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 3। और यहीं पर अगर मैं सिंगल डिवीजन ऑपरेटर यूज करती तो ये मुझे रिजल्ट किस में देता? डेसिमल, ठीक है। अब इसमें मेरा क्या है? फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा बेटा? 3। और जो मेरा सेकेंड पार्ट है a मॉड्यूलस b, ये a मॉड्यूलस b मुझे क्या रिटर्न करके देगा? रिमाइंडर। प्रिंट a मॉड्यूलस b। तो अगर मैं डिवाइड करूंगी 100 को 30 से, 33 सा 90, ठीक है। 100 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? रिमाइंडर 10। तो सेकेंड वाले प्रिंट फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या आएगा बेटा? 10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इन पाइथन इज यूज्ड टू रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? आइडेंटिटी किसी की मीन्स वो मेमोरी में किस लोकेशन पर स्टोर है, उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है बेटा? आईडी फंक्शन। Now next question, which amongst the following is a mutable data type in Python? Mutable means आपने ये चीज तो पढ़ते हो, बुक्स में डेफिनेशंस होती हैं कि mutable means जो चेंज हो सकती है, immutable means उसमें चेंज नहीं होता। बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है बेटा? कि इन प्लेस की मेमोरी में उसी लोकेशन पर वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही। लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली। अब सपोज मैंने a में वैल्यू करी, लिखी 20, ठीक है। आईडी ऑफ ए चेक करते हैं, मीन्स मेमोरी में ये किस लोकेशन पर स्टोर है, ये उसकी आईडी आ गई। अब मैंने क्या करा? a इक्वल्स टू a प्लस 30 कर दिया। अब a में वैल्यू क्या आएगी? 20 प्लस 30 50। अब अगर मैं आईडी ऑफ a चेक करूं तो क्या वो आईडी सेम है? नहीं। दैट मीन्स उसने जो चेंजेस किए वो इन प्लेस चेंजेस नहीं किए। तो ये जो नंबर, स्ट्रिंग और टपल है मेरी, दीज आर माई इम्यूटेबल डेटा टाइप। लिस्ट और डिक्शनरी है जो मेरी म्यूटेबल डेटा टाइप है। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। अब सपोज मैंने एक लिस्ट ली बेटा 11 22 33 44। अब मैंने क्या करा? L ऑफ 0 पर मैंने वैल्यू कर दी बेटा लेट सपोज 88। तो जब मैं लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी न्यू वैल्यू के साथ, आईडी नहीं चेक करी, लेट मी डू दिस अगेन। ये मेरी लिस्ट है, इसकी आईडी चेक करो बिफोर चेंजेस, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी में मेरी लिस्ट स्टोर है। अब मैंने क्या करा? L ऑफ 0, यहाँ पर मैंने वैल्यू कर दी लेट सपोज 77। तो अब जब मैंने लिस्ट में चेक करा, लिस्ट में चेंज हो गया। अब जब मैं आईडी ऑफ L चेक करूंगी, अब देखो मेरी आईडी सेम है 6661398। दैट मीन्स कि मैंने जो चेंजेस किए हैं वो इन प्लेस उसी जगह पर चेंजेस हुए हैं। तो दैट मीन्स इसीलिए हम कहते हैं कि जो लिस्ट और डिक्शनरी है वो मेरी म्यूटेबल टाइप की है। अब इसका आंसर क्या आएगा बेटा? म्यूटेबल मीन्स लिस्ट। लिस्ट इज योर म्यूटेबल डेटा टाइप। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। POW, power function belongs to which library? Math. The correct answer is B part. Math module library है और you can say module। इसमें डिफरेंस क्या है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन। You can check the playlist of using Python libraries। और मैथ का M जो है वो स्मॉल आएगा। Now move on to the next question।
व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब आपको कोड क्या गिवन है, x इक्वल्स टू 1 2 3। ये किस टाइप की वैल्यू है 1 2 3? इंटीजर टाइप की। अब मैंने लूप लगाया फॉर i इन x प्रिंट i। अब आपके माइंड में क्या चल रहा है, x में 1 2 3 आएगा? नहीं। रीजन बीइंग दैट जो मेरा ये 4 में जब हम आइटरेशन ये मेंबरशिप उसके थ्रू करते हैं, इन ऑपरेटर जो है वो मेरा स्ट्रिंग लिस्ट अपर सीक्वेंस पर चलता है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो देन इट विल शो मी द एरर इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। हाँ, बट अगर मैं इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख दूं, अब वो 1 2 3 इंटीजर नहीं है, नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 2 एंड देन 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, इट विल शो यू द एरर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखो इसमें हमारा क्या होता है, हमारे पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं बेटा, एंड और। अगर मेरे पास कंडीशन की फॉर्म में मींस a लेस देन b, a ग्रेटर देन b, तो वो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आएगा। बट अगर मैं बात करूं वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज हो, ठीक है। अब देखो अगर मैं और ऑपरेटर की बात करूं, अगर मैं अपने और ऑपरेटर की बात करूं तो मेरा जो और ऑपरेटर है लॉजिकल और, उसमें क्या होता है, वो फॉल्स सिर्फ तभी देगा इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, ठीक है। अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, फर्स्ट कंडीशन मेरी क्या है, ट्रू, तो क्या सेकंड कंडीशन को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे तो पता है रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। यही केस हम यूज करेंगे अपना लॉजिकल और में। अब देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूं 17 और नन, अब 17 कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, एनी नॉन जीरो वैल्यू दैट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू। तो जब मैं 17 और नन लिखूंगी तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा बेटा, 17। कैसे रिटर्न करेगा, क्योंकि और ऑपरेटर है, फर्स्ट वैल्यू मेरी नॉन जीरो है, वो ट्रू हो गई, तो सेकंड तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्या वैल्यू हो, तो इसलिए वो आंसर क्या आ जाएगा 17। लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली। 17 और नन, नन मीन्स कि उसमें वहां पर कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक एम्प्टी वैल्यू है। बट अगर मैं लिख दूं नन और 17 तो भी आंसर क्या आएगा 17। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू चेक करी फॉल्स, तो अब वो नेक्स्ट वैल्यू चेक करेगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 17 ट्रू, तो वो 17 रिटर्न करेगा। बट अगर मैं लिख दूं नन और नन, दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, नन, वो प्रिंट नहीं करेगा नन को, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रू भी है, मेरा रिजल्ट डिपेंड करेगा सेकंड कंडीशन पर। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू है तो ही रिजल्ट मेरा क्या होगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो अगर मैं लिख दूं 17 एंड नन, तो आंसर विल बी नन, क्योंकि सेकंड प्लेस पर क्या है, नन, मेरी वैल्यू सेकंड वाले ऑपरेंड पर डिपेंड करेगी। अगर मैं फर्स्ट पे ही नन लिख दूं, नन की जगह आप 0 भी लिख सकते हो, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू आपकी ट्रू कंसीडर होगी, 0 और 76, ठीक है। ये और था, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, तो सेकंड मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर। अब इसमें देखो बेटा नन एंड 52, अब एंड है, तो अगर मेरी फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स होगी तो सेकंड तो मैं चेक नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है एंड में अगर फर्स्ट फॉल्स है दैट मींस नन, तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा। अब 52 एंड 45 दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू, बट आंसर का कौन सा आएगा, सेकंड वाली वैल्यू 45, क्योंकि मेरा जो फाइनल आंसर है वो डिपेंड करेगा सेकंड वाली वैल्यू पर। Now next question, what will be the output of the following code? Now see here beta, in the code the first statement is initialization part I equals to 1 while true, that means the condition is true. अब उसके बाद क्या है, I modulus 3 double equals to 0. Inside the while loop there is a if statement. अब वो condition check होगी. Now there are two possibilities, either my condition will be true or my condition will be false. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देन दिस ब्रेक स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज दीज टू स्टेटमेंट्स विल गेट एग्जीक्यूटेड। सो फर्स्ट टाइम पर बेटा मेरी जो आई की वैल्यू है वो क्या होगी 1, कंडीशन ट्रू। अब आई की हम कंडीशन चेक होगी 1 मॉडुलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो क्या प्रिंट हो जाएगा बेटा यहाँ पर, आई की वैल्यू क्या है 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई प्लस इक्वल्स टू 1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2,
2 मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0. अब अगेन दिस टाइम द कंडीशन इज false, तो it will print 2. Then I plus equals to 1. That means अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और फिर 3 मॉड्यूलस 3 पर आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू. फिर क्या हो जाएगा ब्रेक मीन्स लूप से बाहर. लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली. और जितना आप बेटा इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे, एक्सप्लोर करोगे, डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर होंगे. ठीक है, लेट मी जस्ट करेक्ट द इंडेंटेशन. अब देखो 1 और 2 पर मेरी कंडीशन फॉल्स है, तो इसने वैल्यू को प्रिंट कर दिया. अब जैसे ही मेरे कंडीशन ट्रू होएगी 3 मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट होते ही लूप से बाहर, और लूप से बाहर आपकी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 and 2 it will print. Now move on to the next question. So the correct answer क्या होगा बेटा इसका ऑप्शन नंबर A, that is 1 and 2. Now move on to the next question. What will be the output of the following program? अब आपको एक कोड गिवन है x equals to a b c d. ठीक है, ये स्ट्रिंग गिवन है. For I in range length of x. यहां से लेंथ ऑफ x क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू कितने कैरेक्टर्स हैं a b c and d, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी 4, लेंथ ऑफ x. ठीक है, अब मेरा जो फॉर लूप है फॉर i इन रेंज लेंथ ऑफ x, दैट मीन्स 0 1 2 और 3, 4 के लिए वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि मेरा रेंज फंक्शन है कम तक एग्जीक्यूट होता है. अब ये सारी वैल्यूज किसकी आ जाएंगी बेटा i की, तो आपका आंसर क्या आएगा 0 1 2 and 3. ठीक है, लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली. ABCD नहीं आएगा. ABCD कब आएगा अगर मैं क्या लिखूं x of i. लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली. 0 1 2 and 3. अगर मुझे ये ABCD प्रिंट कराने हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा x of i, क्योंकि i में तो मेरी वैल्यूज क्या है 0 1 2 3 जो इंडेक्स है, और उस इंडेक्स पर अगर वैल्यू देखनी हो उसके लिए क्या है बेटा xi. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है i, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 0 1 2 and 3. तो जो फाइनल आंसर विल बी दिस. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग प्रोग्राम. अब इसमें आपको नेस्टेड लूप गिवन है बेटा, अ लूप विद इन अनदर लूप. और जब मेरा फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, पहले वो i की एक वैल्यू के लिए चलेगा. ठीक है, एक वैल्यू पिक करेगा, फिर मेरा j का लूप चलेगा जब तक कि वो फॉल्स ना हो जाए. फिर जैसे इनर लूप मेरा फॉल्स होगा, फिर i की वो नेक्स्ट वैल्यू पिक करेगा, फिर वो तब तक चलेगा जब तक मेरा इनर j लूप फॉल्स ना हो जाए. लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली. नाउ सी हियर बेटा, फॉर i इन रेंज 1 3 और 1 मेरी स्टार्टिंग वैल्यू, 3 स्टॉप वैल्यू, और इंक्रीमेंट वैल्यू में स्टेप वैल्यू 1. तो i की वैल्यूज क्या हो जाएंगे बेटा 1 और 2. ठीक है, रेंज फंक्शन है तो वो एक कम तक चलेगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 और 2. अब क्या है j इन रेंज i प्लस 1, मीन्स अगर मेरी जब i की वैल्यू, यहाँ पर देखते हैं इसको, जब मेरी i की वैल्यू क्या है बेटा, इसका साइज सेट करते हैं. यस, नाउ सी हियर, जब मेरी i की वैल्यू क्या होगी बेटा, टोटल वैल्यूज क्या ले सकता है 1 और 2. ठीक है, तो जब मेरी i की वैल्यू 1 होगी तो j की वैल्यू का लूप कहां तक चलेगा, j का जो मेरा लूप है i प्लस 1, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, और 2 है तो मेरा ये वैल्यू कहाँ चलेगा 0 और 1 के लिए. ऐसे नेक्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 2 होगी तो j में क्या आ जाएगी वैल्यू i प्लस 1, 2 प्लस 1 मीन्स 3, तो 3 है तो मेरा लूप 0 1 और 2 3 टाइम्स चलेगा. और मुझे क्या प्रिंट करना है स्टार, तो स्टार मेरा देखो कितनी टाइम्स मेरा j का लूप एग्जीक्यूट हो रहा है 2 और देन 3, टोटल 5,
तो 5 टाइम्स जो है मेरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस नाउ। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 टाइम्स कैसे? आई की वैल्यू 1 के लिए जे का लूप चलेगा जब तक वो फॉल्स ना हो जाए, फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए दोबारा से मेरा जे का लूप एग्जीक्यूट होगा। सो इसमें आपका जो है जे का लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तो मेरे जो स्टार्स है वो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएंगे। So this will be the final answer of this question. That's all for this video. Remaining questions related to revision tour of string, tuple, list and dictionary, that we will continue our next video. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying. Thank you.